SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you all are happy and healthy at your home. This is your mentor Nisha Gola, and today we will start our chapter number 8, and the name of the chapter is decimals. Okay, let's start our chapter. So first we will know what are decimal fractions. So fractions with 10, 100, 1000, etc. as denominators are called decimal fraction. मीन्स ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो डेनोमिनेटर होता है वो जीरो नंबर में होता है, जैसे 10, 100, 1000, 10,000. अगर इस तरह से डेनोमिनेटर होता है तो हम कह सकते हैं वो क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस. फॉर एग्जांपल 8 by 10, 6 by 100, 51 by 100, 52 by 1000, etc. So these are decimal fractions. Now we will learn what is tenths. Tenths means 10 में से some part. Okay, so when we divide a whole into a group of 10 equal parts, तो जब हम किसी whole को, एक पूरे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, 10 equal parts में डिवाइड करते हैं, तो each of these part is called 1/10. तो इसका हर एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1/10. और इसको रिटर्न हम इस तरीके से लिख सकते हैं 1/10, और वी कैन से 1/10. As a decimal it is written as 0.1, और इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 0.1. and read as 0.1. The point before 1 is called decimal point. तो ये जो पॉइंट लगा है इसी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेसिमल पॉइंट. ओके, so in the given figure the shaded part represent 0.1. Here 10 parts are there, one is shaded, means 1 by 10, and in this it is showing 0.1, means in this shape the shaded part represents 0.1. Similarly, the fraction of shaded parts of each of their figures is written below it. Like here 10 parts are there and 4 parts are shaded, so fraction will become 4 by 10, and the decimal form is 0.4. Here 1 is, so how do we get in decimal form? So जो ये जीरो रहती है जितनी, उसके बाद हम जो नंबर दिया है वो लिखेंगे न्यूमरेटर में, और जितनी जीरो है उसके बाद राइट से लेफ्ट उतने डेसिमल प्लेस लेंगे. यहाँ पर 10 है, इट मीन 1 डेसिमल प्लेस आएगा, और इसके आगे होल नंबर कुछ नहीं है तो 0. Here 6 by 10, so we get 0.6. Here also 5 by 10, and the decimal form is 0.5. Now what is hundredth? Same when we divide a whole number, say a square, into 100 equal parts. जब हम किसी होल को, किसी ऑब्जेक्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/100th, और वी कैन राइट 1/100. In decimal form we write it as 0.01 and read it as 0.01. Similarly, 3/100 is written as 0.03 and read as 0.03. Okay, 6 by 100 written as like this, and we read it as 0.06. Here it is written like this and we read it 0.38. Okay, now decimal fraction in place value chart. अब डेसिमल जो फ्रैक्शन है उनको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे दिखाते हैं. प्लेस वैल्यू आप सबने पढ़ा होगा, इंडियन प्लेस वैल्यू. इसी प्रकार अब हम देखेंगे डेसिमल फ्रैक्शन इन प्लेस वैल्यू चार्ट. तो दिस इज द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट ऑफ नंबर. इंडियन प्लेस वैल्यू में हम क्या रहते हैं, हमारे पास वंस, टेंस, hundreds, thousand, and so on. So here ones is 1, tens, 10, hundreds, 100, and 1000, 1000. Okay, so 1/10 of 1000. If we are getting 1/10 of 1000, so how do we write 1/10? मतलब 1/10 of means multiply and then 1000. So जब भी हम इसको कट करेंगे तो 0 से 0 गया, 100 1 से 100, तो हमारा कितना आंसर है, 100. 1/10 ऑफ 100 का निकालते हैं हम, तो 1/10 इंटू में 100,
तो 0 से 0 गई, कितना आ गया हमारे पास 10, तो वो 10 आया, इट मीन्स 1 10. Here from the above we observe that in the place value chart moving one place to the right, the value of a digit become 1 by 10 of its value at the preceding place. Okay, कि जब हम यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं और यहाँ 1000 से 100, 100 से 10 ऐसे आ रहे हैं, तो वो क्या है 1 by 10 पार्ट उसका निकल रहा है. Thus we can extend the place value chart as shown below. अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सटेंड. यहाँ से हमने पढ़ा था वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000, और हम यहाँ से आ रहे हैं यहाँ, तो ये क्या दिखा रहा है 1/10 पार्ट दिखा रहा है. क्या दिखा रहा है 1/10 पार्ट ऑफ द नंबर. सो यहाँ पर अब हमने इसको एक्सटेंड किया है, यहाँ आ गया हमारा डेसिमल, देन आएगा टेंस. तो 10th हमें पता है, जब हम इस साइड मूव करेंगे राइट साइड, तो क्या होगा इसका 1/10. तो 1 का 1/10 कितना होगा 1/10 ही होगा, जिसको हम लिख सकते हैं 0.1. सिमिलरली 1 का 1/10 का अगर हम 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100. तो ये निकलेगा हमारा 0.01. ओके, नाउ वी विल लर्न व्हाट आर मिक्स्ड डेसिमल्स. ओके, तो अ डेसिमल फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स. तो डेसिमल जो फ्रैक्शंस होते हैं उसके दो पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट्स. तो कौन से दो पार्ट होते हैं? एक होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. ओके, सो अ डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स दिस टू पार्ट्स. जब भी हम नंबर लिख रहे हैं तो बीच में जहाँ भी डेसिमल आया है तो उससे पहले और बाद का जो नंबर होगा वो डेसिमल क्या है, दो नंबर में उनको डिवाइड करता है. Such decimal fractions are called mixed decimal. तो इस तरीके के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं मिक्स्ड डेसिमल. होल नंबर पार्ट जैसे हमें दिया है यहाँ पर 40.4, तो हेयर पॉइंट, पॉइंट के बाद वाला क्या हो जाएगा डेसिमल पार्ट, और इस पॉइंट से पहले वाला क्या हो जाएगा हमारा, मतलब ये 40, ये हो जाएगा हमारा होल नंबर. ठीक है, ये क्या हो जाएगा होल नंबर. ओके, हमारा होल नंबर. सो ये है हमारा डेसिमल पॉइंट, 4 हो गया हमारा डेसिमल पार्ट, और इधर वाला ये हो गया होल नंबर पार्ट. ओके, सो अ फ्रैक्शन इन विच द डेसिमल पॉइंट सेपरेट्स द होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड अ मिक्स्ड डेसिमल. तो ऐसे फ्रैक्शन जो क्या करते हैं, एक डेसिमल पॉइंट, जो डेसिमल पॉइंट क्या है वो सेपरेट कर रहा है किसको, होल नंबर पार्ट को और डेसिमल पार्ट को, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं मिक्स्ड डेसिमल बोलते हैं. नेक्स्ट, डेसिमल प्लेसेस कैसे निकालेंगे अब. तो डेसिमल प्लेसेस, इन अ डेसिमल द नंबर ऑफ डिजिट इन द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट्स होंगी उनको काउंट करेंगे हम, जितनी डिजिट्स होंगी उतना हम बोलेंगे उतने डेसिमल प्लेस हैं. जैसे 37.48, ये है हमारा वंस, ये है टेंस, ये 10th और ये 100th. ठीक है, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है 2, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है. इट मींस वी कैन से दैट हियर 2 डेसिमल प्लेस. ठीक है, फॉर एग्जांपल 37.48 हैज 2 डेसिमल प्लेस as I shared with you. So here 2 decimal place are there. In this 58.6, तो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है एक. इट मींस वी कैन से here 1 decimal place. For example, number 1, write each of the following as a decimal. इन्होंने हमें किस में लिखना है डेसिमल में. तो ये 7/10. अब मैंने बताया था कि जितनी जीरो है उसी के अकॉर्डिंग उतने प्लेस पे हम क्या करेंगे डिजिट लेंगे, उतनी डिजिट काउंट करके हम क्या लगाएंगे डेसिमल. सो हेयर 7/10, एक जीरो है तो 7 न्यूमरेटर हमने लिखा और एक डिजिट के बाद पॉइंट, मतलब ये हो जाएगा 0.7. हेयर 8/100 कितनी जीरो हैं 2, तो 2 प्लेस हम लगा देंगे, दूसरा प्लेस हमारे पास नहीं है तो उसकी जगह हम क्या लेंगे 0. ठीक है, हेयर 61 और 2 जीरोस हैं तो 2 प्लेस लेंगे 1 एंड 2, इधर आ जाएगा पॉइंट और उससे पहले 0. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल. डेसिमल के क्या करना है हमें, अब इनके नंबर नेम लिखने हैं. नंबर नेम लिखते टाइम हमें एक बात ध्यान रखनी है कि डेसिमल के बाद जो नंबर आएंगे उनको हम डिजिट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ना कि होल नंबर पढ़ते हैं. इसको हम 88 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे 88. ठीक है, तो डेसिमल के बाद हमें ये याद रखना है. ओके, नाउ
1 is 0.8. How we will write? 8 tenth we can write, or we can write 0.8. 8 tenths मतलब 8 upon 10. We can also write in this way. Next 17.88. तो ये हो जाएगा 17.88. As I told you कि हमें क्या करना है, इसको होल नंबर की तरह 88 ना पढ़ के डिजिट की तरह हम लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो भी नंबर आएंगे, तो 8 8. Now this number will be written as 507, that is whole number, then decimal, or we can say point, after that 0 6. Okay, so here this number is given and how it is raised, 63.93. and I told you before कि जब भी हम पॉइंट के बाद जो भी नंबर लिख रहे हैं उसको एज अ होल नहीं पढ़ेंगे, डिजिट वाइज पढ़ेंगे. तो 93 जो लिखा है वो गलत है. इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 63, ये हमारा होल नंबर हो गया, देन पॉइंट, और पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद हम डिजिट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो ये बन जाएगा 63.93. इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे डिजिट. ठीक है. नेक्स्ट, शो द फॉलोइंग इन प्लेस वैल्यू चार्ट. अब हमें प्लेस वैल्यू चार्ट बनानी है और जो ये नंबर दिए हुए हैं उन्हें चार्ट में शो करना है. तो यहाँ हमें दिया है वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, और उसके बाद हम यहाँ से लिखते हैं डेसिमल, टेंथ एंड हंड्रेड. तो यहाँ लिखा है 7.2. तो 7 क्या है हमारा? वंस, तो वंस में लिखा, डेसिमल लगाया, देन 2 है हमारा टेंथ, तो ये टेंथ वाले कॉलम में आ जाएगा. देन 278, 200 है तो 100 में, देन 70 टेंस में, 8 वंस में, पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 0 है हमारा टेंस एंड 100 है हमारा 9. सिमिलरली 72.99 ये हो गया टेंस, 7 2 हो गया हमारा वंस, डेसिमल, ये हो गया टेंथ, और ये हो गया 100. ओके, सो नाउ वी विल do our exercise 8.1. Write, what is the question number 1? Write the shaded part each of the figures as a decimal. Decimal की तरह हमें क्या लिखना है? फिगर्स को लिखना है. फर्स्ट we count all the parts, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So here are 10 total parts and shaded part is 1. So we can write it in decimal 0.1. Okay, so B and C you will solve by yourself. Next question is, in each of the figures colors the part showing the given decimal. अब हमें डेसिमल दिया है, इसके अकॉर्डिंग हमें शेड करना है जैसे हमने फ्रैक्शन में किया था. तो 0.4 का मतलब क्या है? 4/10. इट मीन्स देयर आर 10 parts and we have to shade 4 parts. So we will shade 4 parts. Okay, so it will become 0.4. Just like that, B and C you will do by yourself. Next, third, write this decimal as fraction. अब decimal जो दिया है उसको fraction में कैसे लिखेंगे? First हम नंबर लिखेंगे. इसमें नंबर 0.3 दिया है, नंबर क्या है? 3. तो 3 हमने लिखा है न्यूमरेटर. उसके बाद हम डेसिमल प्लेस काउंट करेंगे. तो डेसिमल प्लेस कितना है हमारे पास? 1. तो नीचे आ जाएगा 10, एक जीरो के साथ. ठीक है. इसी तरह ये है 0.47, तो हम पहले 47 लिख लेंगे, मतलब 47 एज ए न्यूमरेटर. डेसिमल प्लेस कितने हैं? 2. तो here we write 100. Okay, rest of the part you will do by yourself. Next, write the following as decimal. 9/10 मतलब 9/10, or we can write it 0.9. 800th, so we will write like 8/100. So it will become 0.08. 6/10, 2400th you will do by yourself. Next, write the following decimal number in the place value chart. अब हम इसे place value chart में बनाना है, लिखना है. तो place value chart में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? place value chart बनाना पड़ेगा. कैसे बनाएंगे? हो गया हमारा डेसिमल पार्ट. यहाँ लिखा गया हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स. ठीक है. और यहाँ आ जाएगा हमारा टेंथ और 100th.
अब यहाँ देखेंगे हमें फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है 83.8। 3 क्या है हमारा वंस प्लेस, 8 क्या है टेंस प्लेस। तो 8 आ जाएगा यहाँ, 3 देन डेसिमल और 8 जो है वो है 10th प्लेस पे, तो ये आ गया ऐसे। ठीक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट नंबर लिख सकते हैं 96.09। तो 96 9 है टेंस, 6 है वंस, पॉइंट 10th पे क्या है 0 एंड 100 पे है हमारा 9। तो just like that you can do these questions. Okay, next question is write each of these as decimal. Now we have to write this fraction into decimal. So 9 first, and how many 0 is there? Only 1. So we take 1 decimal place, so it will become 0.9. Here 18 is given, 18 and upon 100. So there are 2 zeros. So we will take 2 decimal place. So 1, 2. We will take decimal here and whole number is nothing. So we will do 0. So it will become 0.18. Next, write each as decimal. अब हमें ये word में दिया हुआ है, हमें क्या करना है? Decimal में लिखना है. हमें बोला 3 tenth 5 hundredths और 3500। तो 3 डेसिमल के बाद आता है 10, तो हम डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद 3 10th 500th और हम बोल सकते हैं 3500 और ये हो जाएगा हमारा होल नंबर कुछ नहीं है तो 0। ऐसे ही 9 10th 200, तो 9200 0.92। ओके, नाउ वी हैव टू राइट इट इन वर्ड। सो हाउ वी राइट हियर 404, दैट इज आवर होल नंबर, 404 then 0.7. Okay, so we have to write like this: 87.13, 798.2, 93.89. Okay, you will write it. Okay, next है, next question, write the following in figures. अब हमें क्या है, जैसे हमने ये फिगर्स में दिया होता, नंबर में दिया था और हमने इसको वर्ड में लिखा था, वर्ड में दिया है और हमें फिगर्स में लिखना है, मीन्स नंबर लिखना है 0.8. So how we will write 0.8, 12.5, so 12.5, 0.7, so we will write like this. So rest of the part you will do. Okay, next topic is thousands. So how do we find thousands? So when a whole number is divided into 1000 equal parts, कि हम क्या कर रहे हैं, किसी होल नंबर को 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड 1000 और रिटन एज 1/1000. इन डेसिमल फॉर्म इट इज रिटन एज 0.001. ओके, so here see how 1/1000 mean 1000 is written in a place value chart. तो जैसे हमने इंक्रीज किया था वंस, टेंस, 100, 1000, हेयर पॉइंट के बाद 10th, 100th एंड देन 1000. ओके, सो लुक एट दिस नंबर 456.384. तो यहाँ पर 6 क्या है हमारा वंस, 5 क्या है टेंस, 4 क्या है हंड्रेड्स प्लेस पे है और 3 10th प्लेस पर, 8 100th प्लेस पर, 4 1000th प्लेस पर. तो दिस नंबर हैज 3 डेसिमल प्लेसेस. तो यहाँ पर इस नंबर में कितने डेसिमल प्लेस हो गए 3. हाउ, हमने पता है डेसिमल के बाद मतलब पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं वो हमारा डेसिमल पार्ट और उसमें जितने भी डिजिट आ रहे हैं वही हमारे डेसिमल प्लेस हो गए. तो 1 2 3, 3 डिजिट है, इट मीन्स इट हैज 3 डेसिमल प्लेसेस. ओके, next we have some mental maths questions. So 0.5 can be written in word as 0.5. Okay, we can write like this. Then 64.07, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे 64.075. Okay, and this one 224
24.63. Okay, you can write all these figures in that way. Okay, now we have next topic, that is place value and expanded form of decimals. Okay, so first we know place value. So example, write the place value of each digit 85.076. अब हमें इसकी क्या लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखनी है. आप कैसे लिखेंगे, ये हमने नंबर लिखा, इसको हमने पॉइंट आउट कर दिया डेसिमल के बाद, टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड, और डेसिमल से इधर होल पार्ट पे जाएंगे तो वंस, टेंस. ओके, सो first one is our this one, place value of 6 is 6000. क्या है, थाउजेंड के प्लेस पे है तो ये बन जाएगा 6000, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6/1000. और अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 3 जीरो हैं तो 3 decimal place also there. So 0.006. Here place value of 7. 7 किस पे है, 100th place पर, तो हम लिखेंगे is 700th. और we can write 7/100, or in decimal form we can write 0.07. Here 0 is on tens place, means 0/10 or 0. Here 5 place value of 5 is 5 ones, means 5 into 1 equals to 5. Here 8 is on 10th place, so we can write place value of 8 is 8 tens, means 8 into 10 equals to 80. Okay, now we learn how we expand or the expanded form of decimals. How? Let us write the decimal number 359.089 in the place value chart. तो प्लेस वैल्यू चार्ट में पहले हमने लिखा, यहाँ वंस, टेंस और हंड्रेड्स, यहाँ आ गया हमारा टेंथ, हंड्रेड एंड थाउजेंड. तो ये है 300, हंड्रेड में आएगा, देन 50, टेंस में 5, 9 वंस है तो 9, डेसिमल टेंथ प्लेस पे 0 है, हंड्रेड प्लेस पर 8 and थाउजेंड प्लेस पर 9. Clearly we can write 359.089 as, अब हम इसको कैसे सकते हैं, यहाँ हो गए 3 हंड्रेड्स प्लस 5 टेंस, 5 टेंस, देन 9 वंस प्लस यहाँ पे टेंथ कुछ नहीं है हमारे पास तो 0 टेंथ, देन 8 हंड्रेड्स. ओके, आफ्टर दैट 9000, और इसको नंबर में लिखेंगे हम तो 300 ऐसे लिखा जाएगा, 50 ये हो गया, 9 वंस 9, 0 टेंथ मतलब 0/10, 800 मीन्स 8/100 and 9000 means 9/1000. और we can write like this 300 plus 50 plus 9, क्योंकि 0 यहाँ पर 0 ही आएगा तो 0 को हटा के भी हम लिख सकते हैं. तो सिंपल क्या हो जाएगा, 8/100. ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है. आगे तो ये क्या है, हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म है. नाउ वी विल सोल्व एक्सरसाइज 8.2. So here write the decimal place of the colored digit. Okay, so here is color digit is 8. We have to write the place of this number. So here tens, hundredth, और ये क्या हो जाएगा, थाउजेंड. So इसका प्लेस क्या हो जाएगा, थाउजेंड. Okay, here also 4 डेसिमल के बाद है, इट मीन्स टेंथ को दिखा रहा है तो ये हो जाएगा टेंथ. ठीक है, और वो वी कैन राइट 1000 और 4 टेंथ ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये बन जाएगा 0.4 अगर हमें डेसिमल में लिखना है. यहाँ पर बस हमें डेसिमल प्लेस बताना है तो हम प्लेस पर आएंगे, ये भी टेंथ पे है. ठीक है, तो ऐसे ही आप ये करेंगे. नेक्स्ट राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. अब वर्ड में लिखना है, वर्ड में लिखना आसान है. क्या करना है, 8 उसके बाद पॉइंट, देन हमें पता है डेसिमल पार्ट में डिजिट काउंट करते हैं, डिजिट के अकॉर्डिंग लिखा जाता है 2, 3, 7. Okay, you can write like this. Question number 3, write each of the following in expanded form. Expanded form में हम कैसे लिखेंगे, so here we have to write 16.04 in expanded form. How do we write, here ones, 1 is tens, 0 is tenth and 4 is hundredth. So
1 tens मतलब 10 plus 6 ones means 6 plus 0 tens means we can write 0 upon 10 and 400 means 4 upon 100. Okay, so this is the expanded form of this number. Rest of the part you will do by yourself. Next question is this. Write each of the following in short form. Now we have to write in short form. जैसे यहाँ पर हमें नंबर दिया था, हमने expanded में लिखा है, अब expanded दी है और हमें short में लिखना है. तो ये 100 है हमारा, ये 1s है, ये 10th है, हमें देख के पता चल रहा है, और ये है हमारा 1000. ओके, सो हेयर 100, 1, हमारे पास टेंस कुछ नहीं है तो 0, वंस पे है 1, देन 10th आ गया तो पॉइंट लगाएंगे, देन 7 10th 7. After that there is no 100th, it means 0, and then 4000, so we will write 4, so it will become 101.704. Just like that you will complete it. Next, question number 5. Fill in the blanks to make the statement true. अब हमें इन्हें blank को पूरा करना है जिसकी वजह से ये ट्रू हो जाए. जैसे 6.579 ये एक्सपेंडेड फॉर्म में दी हुई है लेकिन फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में दी है. तो 6 हमारा 1s हो गया, 5 10th हो गया तो 5 upon 10, 7 हमारा क्या हो जाएगा 100s. इट मीन्स क्या होना चाहिए 7 upon 100. ऐसे ही 472.005, 400 है हमारा 100, 7 है 10s तो ये क्या 7 10s मतलब 70 और 2 ones, so here 2. Then 5 is our 10th, 100th, 1000th. It means here 1000 will come. Okay. Next question is write the place value of 2 in 43.209. So here 2 is given on 10th place. So we can write here 2 10th. Or we can write 2 upon 10, or in decimal form we can write 0.2. Okay. In this way, the next part is 7 in 336.007. So here 7 is on what place? 1 or 10th, 100th and 1000th. We can write 7000. Or we can write 7 upon 1000, and in decimal form we can write 0.007. Okay. Next, hot questions are there, so we will solve one by one. Here first question is this. How many decimal places does 20.083 have? तो हमें बताना है decimal places कितने हैं इस नंबर में. We know decimal के बाद decimal part, and in decimal part we count digit. How many digits are there? 1, 2 and 3. It means 3 decimal places are there. So our C option is correct. Then the decimal form of 692 upon 100 is, so there are 2 zeros. It means we have to take 2 decimal places. So here 1, 2. Point हम यहाँ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा 6.92. Here the B option is correct. Then the place value of 8 in this number. So here 8 is on 1's place, so it will become 8 ones. The next one is the number name of this. तो ये क्या हो जाएगा 83.105. So we will write it like 83.105. 105. As I told you, the decimal part we count each digit, not as a number. So we can write 105, 83.105. Okay. Next we have some fun activity, match of the following. We will match. It will become 81, then point 10th, 1, 100th is not there, so 0 and 1000. So here is 81.108. So we will match it. Then 81 hundredths. 81 hundredths means 0.81, then 13.01, it is this. Okay. So student, this is all about our chapter. I hope all the concept of this chapter has been clear to you all. Keep on doing practice. It will make you perfect. We will meet in the next class. Meanwhile, take care yourself. Bye bye.